keep your mic muted. Thank you. Dr. Tazin, you may start now. A very good afternoon to you all. I, Dr. Tazin Alam, welcome you all to today's webinar on how to survive and reinvent your business after lockdown by Dr. Pradeep Bharadwaj. Hit by the COVID-19 slump, followed by social distancing and a nationwide lockdown, businesses are experiencing major impacts no matter how established they are. It has become challenging for most businesses to keep their financial wheels turning during the lockdown period due to the less revenue churn and the general uncertainty in the global financial environment. Keeping the need of the hour in mind, today's session on how to survive and reinvent your business after lockdown was planned. I would like to welcome our Honorable Vice Chairman, Mr. Arpit Chadda sir, who has always been the inspiration and motivation behind organizing such relevant sessions. It is my privilege and honor to welcome our guest for the day, Dr. Pradeep Bharadwaj, who is the CEO and Medical Director of Six Sigma Star Healthcare Limited, Delhi. He is a visiting professor and faculty, panel expert and assessor at IIM Ahmedabad, IIM Lucknow, ISB Hyderabad, and many more institutions of international repute. He is an alumnus of the world-famous IIM Ahmedabad. He is the recipient of 7 prestigious national and 2 international awards. He is in the Limca Book of Records 2017. Few of his awards are the National E-Governance Award by Government of India, Rajiv Gandhi Award in 2010, Express Health Management Award in 2016, Youth Idol and Youth Icon Award, Delhi University, Iconic Leader of the Decade 2016 by Women Economic Forum, and the Rashtriya Ratan Award 2009, to just name a few. He has created several landmarks in the healthcare sector and has written more than 10 reference books on hospital management. Sir, on behalf of the ITS Parivar, I extend a very hearty welcome to you. I also welcome our Director UG Campus, Dr. Sunil Kumar Pandey sir, and our Vice Principal UG Campus, Professor Nancy Sharma ma'am. I take this opportunity to express my thanks to both of you on behalf of all the students for keeping them updated on various aspects during these tough times too. Now I would request our Honorable Vice Chairman, Mr. Arpit Chadda sir, to say a few words and motivate us, sir. Very good afternoon. I hope I'm audible. Yes, sir. Yes. Yeah. Very good afternoon, everyone who joined in for this session. At the outset, I would like to thank Dr. Pradeep Bharadwaj, someone I've really admired personally. I've had the privilege of meeting him and listening to his words of wisdom. He happened to visit one of our other campuses of the group, that is ITS Pharmacy College. And it was a pure privilege for all the students and all of us present there to be part of his lecture. I'm sure what the topic for the day is how to survive and reinvent your business after lockdown. There could not have been a better person than him, who's got numerous awards and who's on the front line, if I may say so, and doing very well for the country. I would not come in between him and the audience, and I would let him take over the session, and it's up to you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I would now request Dr. Pradeep Bharadwaj to enlighten our students as to how to survive and reinvent one's business after this lockdown. Over to you, Dr. Pradeep, sir. I think there is some technical issues. I think, have we lost our connection? Is Dr. Pradeep in the session right now? I think he is not. I think we lost. So he left the session. He left the session, sir. Yeah, there was some connectivity issue, I believe. And how he'll join again, because it is 250 people already in. Sir, I am moving some of the people, sir. I am doing, sir. But first, someone should speak to him.
सर मैं रिमूव नहीं कर पा रही हूँ किसी को भी, कह रहा है यू कांट रिमूव, और अभी प्रदीप सर मीटिंग से निकल चुके हैं, 250 लोग ऑलरेडी हैं। I think voluntarily few of us should leave the meeting. यस सर, And वॉलंटियरली लीव कर लें। बोलिए एक बार फिर किसी को। I would request a few of the faculties to kindly leave the meeting so that Pradeep sir can join in. Yes. Vitushi ma'am, now I think he will be able to join. Immediately 250. But 250 is already there. I think he has joined. Dr. Yes, sir. Tajin, probably sir has Yes, joined. sir. So we can start with VC, or Vice Chairman, Yes, sir. sir. So you can Yeah. request Vice Right, Chairman. sir. I would like to request our Honorable Vice Chairman, Mr. Arpit Chadda, sir, to say a few words and motivate us, sir. A very good afternoon to everyone. We know these days internet is an issue with everyone and some technical problems are occurring. So thank you for holding on. And I'm sure none of you would regret holding on to this session. I would like to once again thank Dr. Pradeep Badwa sir for joining in.
You've been a role model to many, sir. I've had the privilege of meeting you, having an interaction with you, and even had the pleasure of listening to you when you visited our ITS Pharmacy College. We could not think of anyone better to guide each one of us about how to survive and reinvent the business after this lockdown. It goes without saying, every business is going through challenges, but people like you who are on the forefront, who are leading their organizations, and even in spite of all the trouble the country is facing, the way you have come up with Six Sigma and the way you are leading the organization and helping a lot of people recover, and the efforts you've been doing is truly recommendable, sir. And we all appreciate what's been going on from your end and your company. We would request you to guide our students and each one of us how to go ahead about this after the COVID lockdown gets over. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I would now request Dr. Pradeep Bharadwaj to enlighten our students as to how to survive and reinvent one's business after this lockdown. Over to you, sir. Sir, your mic is muted, sir. Sir, your mic is mute. Dr. Pradeep, yes, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. Great. Thank you, अर्पित चड्डा सर, कि आपने मेरे को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है आज आप सबसे बात करने के लिए और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए कि जो कि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है और ऐसा टॉपिक जिसको हर कोई ये सोचता है कि अभी लॉकडाउन है तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। देखिए ज़िंदगी में हम लोग चलते हैं तो हर बार किसी ना किसी मोड़ के ऊपर आकर के हमको सोचना पड़ता है कि आप आगे क्या करना है, आगे कब कहाँ कैसे किस तरीके से करना है। और मैनेजमेंट में ऐसा कहते हैं कि डिस्कशन विदाउट डिसीजन इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड द रिसोर्सेज। तो जो भी आज हम बात करेंगे आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे और हमारी जो पूरी इंटायर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर टीम ने जिसके ऊपर रिसर्च किया है वो प्रेजेंटेशन मैं चाहूँगा कि एक बार भारत एक बार लेके आए। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन ड्यू टू द शॉर्ट ऑफ टाइम हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लेंगे, लेकिन आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, sixsigmahealthcare@gmail.com। आई रिपीट, sixsigmahealthcare@gmail.com। आपकी कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, चाहे आपको ये प्रेजेंटेशन ही चाहिए या कुछ और रिसर्च इससे रिलेटेड चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपकी सेवा में हाजिर है। ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है? जी सर। हाँ जी, चलिए देखिए, हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ, व्हाट, वेयर एंड हाउ। कौन सी ऐसी बिजनेस टेक्निक है जिससे आपको आगे बेनिफिट मिलेगा, या कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे करियर हैं जिसमें आगे आप ग्रोथ कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, जो भी गाइडेंस आपको लेकर के रहेगी, करियर गाइडेंस से बिजनेस गाइडेंस, क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं कोविड-19 के अंदर और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, 28 मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्रीज इन द कोरोना, एंड फोर्थ, हाउ कोरोना चेंजिंग योर लाइफ फॉर एवर। Fifth, we will talk about how to reinvent yourself, and sixth one, what to do and top winning industries career of the future. Then any query still you can ask me at my email ID sixsigmahealthcare@gmail.com। अर्पित चड्डा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं पहले भी ITS कॉलेज में एक बार आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस किया था वहां पर भी, और अभी भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस को लेकर के, सपोर्ट को लेकर के हम हमेशा तैयार हैं। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 350 हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है, और सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के साथ में पूरे कंट्री के लगभग बड़े बड़े हॉस्पिटल एसोसिएट्स हैं। ये छोटा सा मेरा प्रोफाइल है जो कि ऑलरेडी फैकल्टीज ने, मैनेजमेंट ने आप लोगों को बता दिया है। आगे चलते हैं। ये कोविड-19 के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले सिक्स सिग्मा ने अपना पूरा सिक्स सिग्मा हाउस कन्वर्ट कर दिया एक
वॉर रूम के अंदर, कोविड-19 वॉर रूम। अब इसमें हम वी आर सर्विंग टू द नेशन 24/7, जिसके अंदर आर्मड फोर्सेस को जितना भी लॉजिस्टिक है, जिसमें पीपीई किट्स हैं, सैनिटाइजर है, मास्क है, और उसके अलावा क्लिनिकली जितना भी उनको गाइडेंस है वो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की तरफ से जाता है। इसको स्पेशली अप्रिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मन की बात के अंदर भी इसको अप्रिशिएट किया था। उसके साथ साथ हमने एक ऑनलाइन कोर्स भी चालू किया है, जिसमें लगभग 30,000 प्रोफेशनल्स ने इस कोर्स को कर चुके हैं jihmdelhi.in इसकी वेबसाइट से। क्या बात। बिल्कुल जी। Students are requested to mute the mic, please. हाँ यस, अच्छा रहेगा अगर आप माइक को म्यूट ही रखें तो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लेंगे नहीं, वो बाद में आप हमसे मेल कर सकते हैं। ये कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर की कवरेज थी। और नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई दिल्ली का रेट सबसे ज़्यादा हाई है। इसके पीछे एक बिल्कुल साइंटिफिक कारण क्या है कि दिल्ली के अंदर टेस्टिंग सबसे ज़्यादा हाई है। दूसरे स्टेट के अंदर इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है जितनी दिल्ली के अंदर हो रही है। और दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग रेट है वो है 3200 पर मिलियन, जो कि हाईएस्ट है पूरी कंट्री के अंदर। जहां पर ऐसा कहते हैं टेस्टिंग होगी तो वहां रिजल्ट्स भी आएंगे, और जहां टेस्टिंग ही नहीं होगी तो वहां रिजल्ट्स कहां से आएंगे। टाइम टू चेंज द डिफरेंट वे। देखिए, आपने देखा कि आर्मी एक अलग तरीके से काम कर रही है। आर्मी ने एरियल सैल्यूट किया हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस के अंदर उन्होंने बैंड बाजा, परेड, ये सारी चीजें करके एक डिफरेंट मैसेज दिया। सेम पुलिस को आपने देखा होगा कि वो भी अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस को देखते हैं कि वो बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए लोग जाते हैं। आप देखिए पुलिस और बर्थडे मनाने के लिए जाए। देखिए इन्होंने सब ने अपने काम करने के तरीके को चेंज किया। अब चेंज करने को लेकर के उसमें बात आ जाती है कंपैशन की। अब कंपैशन किसको कहते हैं, ये देखिए आप नीचे इसमें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि द इमोशनल रिस्पॉन्स टू एनी पेन और सफरिंग इन्वॉल्विंग ऑथेंटिक डिजायर टू हेल्प एंड शो। अच्छा काम करिए और अच्छा काम करने के साथ साथ दिखाई भी देना चाहिए। अच्छा काम आप आइसोलेशन के अंदर करें तो कोई फायदा नहीं है, वो टोटलिटी में करना चाहिए। सेम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस हुई है। आज मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, आज हेल्थ को एक नेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, पहला केस जो इसका आया 30 जनवरी को आया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि आपको कोविड से कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे बचाव करना, नहीं। हम बात करेंगे सिर्फ टोटल की कि कैसे आपने आपको रीइन्वेंट करना है। अभी हमारी कंट्री के अंदर मोर देन 90,000 केसेस हैं और कोविड-19 ने सारी चीज़ों को बदल दिया है। आप खुद उसके गवाह हैं, आप सब देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, अपने नेबरहुड के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। एंड क्विक एडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। देखिए, आपने सुना होगा कि समस्याएं कभी इतनी ताकतवर नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी, तो वो सुबह जरूर होगी, और उसके लिए सबसे जल्दी होगी जो सर्वाइवल फॉर द क्विकेस्ट, जो जल्दी सर्वाइव कर सकता है, जितने क्विक तरीके से सर्वाइव कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कशन करेंगे, इन सारे पॉइंट को हम डिटेल में बात करेंगे। फोर्स और जेआईटी। जेआईटी होता है जस्ट इन टाइम एंटरप्रेन्योरशिप, ईगो स्लैप बाय द नेचर। सिक्स्थ, रियल हीरोज आर द फ्रंट लाइन वर्कर, जिसके अंदर हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिस कर्मी हैं, हमारे हेल्थ के स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल्स हैं, नर्सेस हैं। एंड हेल्थ केयर इज द फ्यूचर। अब आगे चलते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जो मंजिल चलते हैं वो सिकवा नहीं करते, और जो सिकवा करते हैं वो कमबख्त कभी पहुंचा नहीं करते। इनोसेंट पीपल आर डाइंग, मर रहे हैं लोग। ग्लोबल रिसेशन आ गया, सारा वर्ल्ड एक तरीके से आपने देखा होगा टोटली लॉकडाउन है। ऐसा उठा पटक का टाइम, टर्बुलेंट टाइम पहले कभी नहीं था। पूरी सोसाइटी का इसने फेस को चेंज कर दिया है। कोविड-19 ने हमेशा के लिए चेंज कर दिया, और अगले कई साल ये चेंज ही रहेगा, और हमको इसी तरीके से कोविड-19 के साथ ही जीना पड़ेगा। कैसे जीना पड़ेगा उस पर भी हम बात करेंगे। क्विक एडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। आपको अपनी हैबिट बनानी है, एक लाइफस्टाइल बनाना है कोविड-19 के साथ।
अपना मेंटल मॉडल हमको चेंज करना है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि माइंड इज द प्रॉब्लम एंड माइंड इज द सॉल्यूशन। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कीप योर माइंड सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। टॉक हेल्थ हैप्पीनेस टू द पीपल। पीपल आर लर्निंग सोशल डिस्टेंसेस। कभी आपने सुना था कि कॉमन लोगों को, जनरल लोगों को पीपीई के बारे में पता हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आज वो इसको यूज करते हैं, आज वो आइसोलेशन में रहते हैं, आज वो मास्क पहनते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हैंड वॉशिंग करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। डार्विन ने कहा था, उसकी थ्योरी है इवोल्यूशन की, ही सेज दैट इट्स नॉट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव, इट्स समथिंग दैट द मोस्ट एडेप्टेबल विल सर्वाइव। तो जितना जल्दी जो एडेप्टेबल होगा वो सरवाइव करेगा। और देखिए, जिंदगी के बारे में ऐसा कहते हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी तो सब कुछ अच्छा, और जिंदगी है तो सब कुछ है। एक हिंदी में बड़ी अच्छी एक बात है कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी। अब हम उस चीज पे नहीं जाते किंतु परंतु कैसे हुआ, कोरोना चाइना ने क्रिएट किया या आया वहां से। देखिए, अब दौर वो आया है कि कातिल की सजा कोई नहीं, हर सजा सिर्फ उसके लिए है जिसकी खता कोई नहीं। सर्वाइवल फॉर द क्विकेस्ट। कोविड-19 इज चेंजिंग द वे वी थिंकिंग। जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके को चेंज कर रहा है। आप जस्ट इमेजिन करिए, जो 5 स्टार होटल्स हैं उनका डेली उनका इतना एक्सपेंस होता है, रनिंग एक्सपेंस ही इतना होता है उनका। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा कहते हैं जब उसकी डीप रूट होती है, तो चाहे वो आंधी तूफान कितना भी बड़ा आ जाए उस पेड़ को हिला नहीं सकते। बिजनेस, जो छोटे मोटे बिजनेस थे जो एक दूसरे से नकल करके, कट कॉपी पेस्ट करके किए हुए थे, लगभग खत्म हो जाएंगे। लाइफ टॉपर विल सर्वाइव। लाइफ टॉपर सर्वाइव करेंगे। इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो स्कूल या कॉलेज में टॉपर होता है, इंटेलिजेंट वो होता है जो लाइफ में टॉपर होता है। आगे चलते हैं। फोर्स या JIT एंटरप्रेन्योरशिप। हमने आइडेंटिफाई करना है नए बिजनेसेस को। अगर आप ये सोचें जिस बिजनेस को जैसे मैं चला रहा था वो वैसे चले, तो आप भूल जाइए, वो उस तरीके से नहीं चलेगा। आपको अपना उसको बिजनेस को करने का तरीका जरूर चेंज करना पड़ेगा। द वे, किस तरीके से आप कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, आप इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, हमारी जो रेगुलर क्लासरूम्स हैं वो लगभग क्लोज हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने बहुत जल्दी फोकस किया वर्चुअल एजुकेशन के ऊपर, ई लर्निंग के ऊपर, और सारी क्लासेस चल रही हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्डिंग जरूर क्लोज है स्कूल कॉलेजेस की, लेकिन टीचर्स आज भी एक्टिव हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उसी तरीके से काम भी चल रहा है, असाइनमेंट्स भी देते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी जनरेटेड बाय द क्राइसिस। कुछ लोग ऐसा होता है कि प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं, और हम तो हेल्थ केयर के लोग कहते हैं जहां जितनी ज्यादा प्रॉब्लम वहां उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। तो आपने इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? री एग्जामिन योर बिजनेस मॉडल। अपने बिजनेस मॉडल को री एग्जामिन करना है। जब फौज और पुलिस अपने काम के करने के तरीके को री एग्जामिन करती है, कई DCP IPS IAS मेरे से फोन करके पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब अब और हम क्या करें अच्छी रीचेबिलिटी बनाने के लिए, अच्छे ऑपरेशंस के लिए। तो आपको उन लोगों से सीखना है। और देखिए, वो लोग सबसे बड़ी गलती करेंगे जो अपने पुराने एम्प्लॉइज को निकालने की कोशिश करेंगे। आप अच्छा लीडर वो नहीं होता जो लोगों को निकाल करके लीडरशिप करे। अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरे को लीडर बनाए। ठीक है? और लीडरशिप इज एक्शन, लीडरशिप इज नॉट द पोजीशन। तो आपने अपने लोगों को उस तरीके से नर्चर करना है, डेवलप करना है, और एक लीडर की ही डायरेक्शन में पूरी टीम चलती है। टीम कभी फेल नहीं होती, लीडर फेल होते हैं। तो अगर आपने अपने बिजनेस को री इन्वेंट कर लिया, उसके बारे को उसमें री एग्जामिन कर लिया, और सही लाइन एंड लेंथ के साथ आप चले, तो आपके एम्प्लॉइज भी सर्वाइव करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सर्वाइव करेगी, और आपके साथ जुड़े चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सब सर्वाइव करेंगे। तो किसी को निकाल देना इस समस्या का समाधान नहीं है। अब ये देखिए, ईगो स्लैप बाय द नेचर। नेचर जो है ना बाउंस बैक कर रही है। आज मैं एक न्यूज़पेपर में देख रहा था कि काठमांडू के अंदर आप माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, जो कि वहां से 200 किलोमीटर दूर है। माउंट एवरेस्ट काठमांडू से दिखाई देती है 200 साल के बाद। फ्रेश एयर आ रही है,
ग्रीनरी आप देखेंगे जब आप बाहर निकलते हैं तो कोई पोल्यूशन नहीं है, गंगा साफ हो गई है अपने आप। एनिमल्स को आप रोड पे देखेंगे, आप अलग अलग बर्ड्स की साउंड्स देखेंगे, साइलेंस है चारों तरफ। साइलेंस जब होता है तो हमको अपने इनर पीस के बारे में पता चलता है और हम एक अच्छी चीज सोचते हैं। जालंधर के अंदर ये धौलाधार माउंटेन रेंज दिखाई दी, जो कि 30 साल बाद इस फोटो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमारी टीम ने इकट्ठे किए हैं। देखिए कैसे बर्ड्स और एनिमल्स रोड के ऊपर हैं। ये देखिए, ये इसमें जो कॉर्नर के अंदर लेफ्ट कॉर्नर में है कि आप जिसके अंदर सारे जो हमारे इंसान है वो सारे पिंजरे में बंद है, सारे जो एनिमल्स हैं वो सब बाहर हैं। इट्स नॉट कोरोना, इट्स कर्म। रियल हीरोज आर द फ्रंट लाइन वर्कर। पहले कभी भी हेल्थ केयर के लोगों की इतनी वैल्यू या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज हो रही है। आज ये मेरी प्रेजेंटेशन के बाद में आप एक गाना जरूर सुनिएगा मेरी तरफ से। माइकल जैक्सन का ये गाना है जिसमें है हील द वर्ल्ड, लेट्स मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड मी, पीपल आर डाइंग ऑन द रोड। हम एक ऐसी एनिमी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि दिखाई ही नहीं देती। हेल्थ केयर के लोग अपनी खुद की लाइफ को रिस्क पे लेकर के आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। हेल्थ केयर आज किसी भी कंट्री की लाइफलाइन है सर्वाइव करने की। वो दिन दूर नहीं है जब हेल्थ का बजट भी रक्षा बजट जितना होगा और हेल्थ के अंदर भी परमवीर या अशोक चक्र या वीरता पुरस्कार मिला करेंगे। ऐसा कहते हैं, when health is absent, wisdom cannot reveal itself, art cannot manifest, strength become useless. हेल्थ में जो भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ा होगा, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो हेल्थ का, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, मतलब हेल्थ से जुड़ा कोई भी व्यक्ति उससे रिलेटेड किसी भी काम में जुड़ा होगा वो सक्सेस करेगा। क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं बायो वेपन्स है। अब वो आमने सामने की लड़ाइयां नहीं होंगी, लड़ाइयां इसी तरीके से डिजीज पे ही हुआ करेंगी। डिजीज सबसे बड़ी एनिमी बन जाएंगे। वायरस आपने खुद देखा है कि एक बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थे वो सबसे पहले इसकी चपेट के अंदर है। ट्रू लाइफ सेवर इसके अंदर कोई उभर के आया है तो हमारे हेल्थ केयर के स्टाफ हैं। उसके अंदर एलाइड हेल्थ साइंसेस भी है, डॉक्टर्स भी है, नर्सिस भी है, फार्मासिस्ट भी हैं। तो ये सबसे बड़े हीरो हैं और यही फ्यूचर है हेल्थ केयर का। और अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर या इससे कंसर्न या इससे एसोसिएट कोई भी काम किया तो आप इसमें आगे जरूर बढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं। इसमें ऐसा नहीं है ये 28 ही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं और भी हो सकती हैं। इसमें देखिए टूर एंड ट्रैवल सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। जितने भी ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन थी या अपना स्टेट वाइज जो टूरिज्म बोर्ड थे वो बिल्कुल एकदम धराशायी हो गए और आगे 1-1.5 साल उनके ऊपर इसी तरीके का असर रहेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जो हमारे बड़े बड़े होटल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसकी आप जस्ट लाइफ देखिए क्या होती थी क्या हो गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जो सिनेमा हॉल्स हैं हमारे, मल्टीप्लेक्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, लॉजिस्टिक में अगर हम फूड और मेडिसिन को छोड़ दें तो उसकी भी बहुत बुरी हालत है। लोकल ट्रांसपोर्ट जो हमारी ये जो कैब्स थी जैसे ओला की है, उबर की है, इस तरह की जो चेन टाइप में कैब थी उनका भी बहुत ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है। रेस्टोरेंट, बार बिजनेस, नाइट क्लब्स, लग्जरी इंडस्ट्रीज, एविएशन सेक्टर, जितने भी एयरपोर्ट थे लगभग एक तरीके से घोस्ट टाउन बन गए हैं। ज्यादातर एयरलाइंस ने अपनी एयरलाइंस को सस्पेंड कर दिया है। उससे रिलेटेड जो लोग लाखों लोग जुड़े हुए थे वो एक तरीके से घर ही बैठे हैं। और बहुत सारी ऐसी एयरलाइन कंपनीज हैं जिन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि वो सैलरीज नहीं देंगे। मैं एक बहुत बड़े अभी देख रहा था, एक मंदिर है तिरुपति मंदिर, वो कहता है कि हम अपने लोगों को सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, जो सबसे अमीर जो मंदिर माना जाता है वो लोग ये कहते हैं कि हम अपने लोगों को सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं। दैट इज द लैक ऑफ लीडरशिप। अगर आपके एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिलती तो दैट इज द, वो ऐसा कहते हैं कि आपकी लीडरशिप के अंदर कमी है।
एम्प्लॉय के अंदर कमी नहीं है, वो तो करने को तैयार है। यू गिव देम व्हाटएवर असाइनमेंट यू वांट, ही इज रेडी टू डू इट। जॉब मार्केट, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, अकेले यूनाइटेड स्टेट में 3 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, और टेम्परेरी बेसिस पे उन्होंने ये भी कहा है कि हम अब किसी को नहीं भी लेंगे। रिटेल या मॉल इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, पब्लिक गैदरिंग्स, जितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी पॉलिटिकल या चाहे वेडिंग, वो सब पोस्टपोन हो गई हैं, या होंगी भी तो एक लिमिटेड लोगों के साथ होंगी। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जिसमें आईपीएल है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स, लाइव स्पोर्ट्स होते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। कंस्ट्रक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डिसकंटिन्यू कर दी है, ट्रेडिशनल क्लासरूम या कैंपस प्लेसमेंट कैंसिल हो गए हैं। यू विल नॉट बिलीव, एक मतलब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमको अप्रोच करते हैं कि जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट करी थी, उन काफ़ी लोगों की कैंसिल हो गई हैं या पोस्टपोन हो गई हैं, कि जो भी कॉर्पोरेट आप ले सकते हैं तो उनको ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इफेक्ट ये भी हुए हैं। सेक्स इंडस्ट्री, स्पा एंड मसाज, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इवन खुद मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाना था, तो वो भी लगभग एक तरीके से कैंसिल ही हो गए हैं। फ्लोरिस्ट, बिग पॉलिटिकल पार्टीज, मीट या नॉन वेज शॉप, टेम्पल या श्राइन बोर्ड, जितने भी टेम्पल हैं, जितनी भी श्राइन बोर्ड है, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, चाहे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, ये सारे के सारे इन सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं ये लोग। पर्सनल एंड लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज, अम्यूजमेंट पार्क, म्यूजियम, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड केयर, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर। आपने देखा थोड़े टाइम पहले बहुत सारे लोग अखबार मतलब हाथ में लेने से डरते थे कि इसमें वायरस हो सकता है, हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है कि न्यूज़पेपर के अंदर वायरस बैठ के आ सकता है। एडवर्टाइजमेंट या पीआर कंपनीज, जिसके अंदर आपके कैटरर्स हैं, टेंट हाउसेस हैं, और इनकी हालत जो लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा है, मजदूर, मिस्त्री ऐसे पलायन करने पे लगे हुए, इनको पता ही नहीं है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के बॉर्डर पे छोड़ के चला जाता है। अब मेरे को कई बार ऐसा बड़ा पेन भी होता है कि ये स्टेट एक तरीके से हमारे जो ना कंट्री टाइप में बन गए हैं, कि भाई हम अपना बॉर्डर पार नहीं करने देंगे। एक स्टेट ने तो अभी थोड़े टाइम पहले, दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर के स्टाफ को भी रोक दिया था। व्हाट चेंजेस? वर्क फ्रॉम होम, अब आप देखिए बहुत सारे लोग घर से भी काम करते हैं, क्वालिटी टाइम वो अपने लोगों के साथ बिता रहे हैं। जब आप अकेले काम करते हैं तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। एजुकेशन हमारी सारी वर्चुअल हो गई है, डिजिटल हो गई है। अब आप देखिए कोई छोटा बड़ा कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वर्चुअल। ग्रीटिंग हैबिट्स, पहले जैसे हम लोग गुड बाय, हैंडशेक करते थे, हग्स करते थे, स्मूच केसेस, अब वो सारे पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन एनएसजी कमांडो भी किसी की सिक्योरिटी के लिए पीपीई किट पहन के खड़ा होगा। पर्सनल हाइजीन, अब हम लोग आंख, नाक, कान, गले को टच नहीं करते, पब्लिक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते। पब्लिक गैदरिंग टोटली चेंज हो गई। अब हमने सीख लिया क्लोथिंग, बेटर क्लोथिंग, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का। लड़ाई का तरीका चेंज हो गया, वॉर जो है बायो वेपन से हो। सोशल इंटरेक्शन सब, अब आज, पहले आप इतनी वीडियो कॉल्स नहीं करते थे, अब ज्यादा वीडियो कॉल करते हैं। इंटरनेट का यूज, जैसे नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया है, आपका हॉटस्टार है, इस तरह की चीजों को लोग घरों में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए हैं। दीज आर द चेंजेस। अब जो ये चेंजेस हुए हैं, इस चेंजेस के अंदर से ही हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया है, या उससे पहले। प्रेजेंटेशन नहीं है, पॉल्यूशन कम हो गया है, प्रायोरिटीज बदल गई हैं लोगों की, बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं। अब लोग फैमिलीज को ज्यादा टाइम देते हैं, एक्सपेंस घट गए हैं उनके, घर का बना खाना खाते हैं। बहुत सारे आदमियों ने बल्कि खाना बनाना सीख लिया है। एंटरटेनमेंट चेंज हो गया है, एनवायरमेंट हैबिट्स चेंज हो गई हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट, एक नया पासपोर्ट। अब आगे जैसे कहते हैं ना भाई, वीजा लगेगा, वीजा के साथ साथ वो कहेंगे भाई आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, आपने इम्यूनिटी को बचाव करने के लिए क्या क्या किया। दिस विल बी अ न्यू डॉक्यूमेंट, वेरी सून दिस विल बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। अब टॉप विनिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। देखिए
अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक कविता कही थी कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उठो जागो, करो मेहनत, कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे हे भोले इंसान, मारो छलांग, सोचो कि किस तरीके से हमको कैसे करना है, क्या करना है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, मेरा क्या एक्शन प्लान रहेगा। देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आपका लाइफ चेंजिंग एक तरीके से टर्निंग पॉइंट होगा। विदाउट डार्क स्काई you cannot become a star. If you can imagine, you can create it, and if you can dream, you can get it. Don't just lead your team in the crisis, be a part of it, and keep unquestionable faith on yourself, on your team. ये टॉप विनिंग इंडस्ट्रीज हैं या करियर भी हो सकते हैं फ्यूचर के, जिसके अलावा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो टोटल हमने मेंशन किया है ये यही है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, अब डिजिटल में आप किसी चीज की बात कर लीजिए या डिजिटल ब्रांडिंग की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें आगे चल के आगे मूव करेंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा करेंगी। एंड ऐसा फाइनेंस के अंदर कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, इफ देयर इज अ डिमांड सप्लाई होनी चाहिए। तो डिमांड है, सप्लाई करिए। इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट बिल्कुल धराशायी हो गई, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, उसको खरीदने का टाइम है। वर्चुअल या ई लर्निंग्स, इससे रिलेटेड जितना भी आप कुछ भी असाइनमेंट करेंगे, चाहे आप उसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स करें या कुछ भी ट्रेनिंग्स करें, सेशन करें, मोटिवेशनल लेक्चर्स करें, वो सारे के सारे आपको लीड करेंगे आगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी वर्चुअल ई लर्निंग, भाई वर्चुअल आप करते हैं, साथ साथ कोर्सेज भी अगर आप ई लर्निंग के कर रहे हैं तो उसमें पेमेंट गेटवे बनाने की जरूरत है। एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्री, और फ्री जो होता है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। होम गार्डनिंग, पहले होता था कि हमारे जैसे हाउस के साथ में किचन गार्डन होता था, हम अपनी सब्जी खुद ही उगाते थे और खुद ही बनाते थे। सेम अब वो पैटर्न दोबारा आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है, जो जितने भी फार्मर है उनको गरीब नहीं समझा जाता, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मर को सबसे अमीर समझा जाता है। वही चीज इस कंट्री में रिपीट होने वाली है कि जो अपना खुद ऑर्गेनिक उगाएगा या ऑर्गेनिक तरीके से काम करेगा या इन चीजें को सप्लाई करेगा, वो आगे काफी इंप्रूव करेगा, ग्रो करेगा। ऑनलाइन कोचिंग, टीचिंग, ये भी बहुत अच्छी विनिंग इंडस्ट्रीज रहेंगी। मेंटल हेल्थ वेलनेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, लेकिन इसको उभारने को लेकर के मेंटल हेल्थनेस क्लिनिक्स या गाइडेंस या काउंसलर, इस तरह के लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो कि आगे इस चीज़ में काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑनलाइन मोटिवेशनल लेक्चर्स या ऑनलाइन मोटिवेशन, अब वो लेक्चर उन्हें बहुत कम हो जाएंगे जहाँ पर बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ गैदरिंग्स होती थी, अब इस तरह की चीज़ें चलेंगी। जैसे अल्टरनेट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी इज ए विनिंग इंडस्ट्रीज। इंश्योरेंस सेक्टर, आयुष, आपका एलोपैथी तो है ही है, उसके साथ में आयुष, बहुत सारे लोग, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपको अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आयुष की ये गाइडलाइन है, आयुष के ये खाने पीने की चीजें इन्होंने लिस्टेड किया है, इसको आप यूज करिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सेम इसी तरीके से हमारे आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, इन सारी चीजों की डिमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी और ये काफी अच्छा ग्रो करेंगे। आगे चलते हैं। इन हाउस गेमिंग, घर के अंदर अंदर कोई भी जो भी गेम हो सकते हैं, उसकी डिमांड, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे उसकी सेल की हो, चाहे उसकी ऑनलाइन शॉपिंग की हो। स्पिरिचुअल साइंसेस, जिसके अंदर वास्तु, एनएलपी, एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, टैरो कार्ड, एस्ट्रो, इन चीजों की भी डिमांड बढ़ेगी। हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर के अंदर टेलीमेडिसिन, देखिए पहले टेलीमेडिसिन को लेकर के हमारी कंट्री में कोई गाइडलाइन नहीं थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर गजट पास किया है कि उसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइन मेंशन कर दी है कि आप इस तरीके से टेलीमेडिसिन या टेली हेल्थ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी एरिया है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप, देखिए आप ये मत सोचिए कि अगर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूं तो ये सारी चीजें कर सकता हूं, नहीं। कभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो बैकग्राउंड नहीं देखता है, वो एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो किसी भी चीज को चालू कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डेटा साइंस मैनेजमेंट, बियर, वाइन, लिकर, आपने, अब मैं ये नहीं कहता कि आपने लिकर शॉप खोल लेनी है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। आप देखिए जैसे लॉकडाउन खुला तो
दिल्ली के अंदर तो कई कई किलोमीटर की लाइन थी, अभी भी है। तो इन चीज़ों की काफ़ी अच्छी डिमांड होगी। हैंड हाइजीन से रिलेटेड, जिसमें सोप है, टॉयलेट प्रिपरेशन है, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है, इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी अच्छी इन फ्यूचर में होने वाली है, या अभी भी है। इम्यूनिटी बूस्टर, जिसके अंदर आप चाहे उसमें आप कुछ भी लगा लीजिए, चाहे मेडिसिन लगा लीजिए, चाहे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स लगा लीजिए। अब बहुत सारे हमारे जो फैकल्टीज हैं वो बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिख सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ हेल्थ। मतलब घर बैठ करके आप उसमें आपको साथ साथ आपको बहुत अच्छा अर्निंग भी होगा, आपका नेम एंड फेम भी होगा, और आपके बहुत सारे फैन भी होंगे। तो ये बुक को ऑथर करने का बेस्ट टाइम है। मेक इन इंडिया, आज लोग चाइना के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। आज वो कहते हैं कि भैया इंडिया से हम लेना चाहते हैं। हम बहुत सारे उसमें पीपी में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मेड इन इंडिया चाहिए हमको। जो रैपिड किट है, जैसे इंडिया ने इंट्रोड्यूस की, तो आपने देखा कि बहुत सारे केस अचानक बढ़ गए। और बहुत सारे, एक और फैक्ट की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं सिम्टम नहीं आए। सिम्टम इसी वजह से नहीं आते जो चाइनीज किट से टेस्टिंग करते हैं, उसमें सिम्टम नहीं आते। अब चाइनीज किट के अंदर क्या हुआ, या तो पूरा बैच पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा था या पूरा बैच नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसको डिस्कार्ड कर दिया है, लेकिन मेक इन इंडिया की बहुत अच्छी डिमांड है। चाहे उसमें आप कोई भी चीज बना सकते हैं जिसकी सप्लाई, जिसका एक्सपोर्ट आप दूसरी कंट्रीज में कर सकते हैं। प्रिवेंटिव केयर या सेल्फ केयर को लेकर के काफी चीजें इसके अंदर आगे ग्रो करेंगी। जो फार्मेसी सर्विसेज हैं ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। रोबोटिक्स, लीगल, अब एडवोकेट की बात करते हैं। अब देखिए, फौज ने, पुलिस ने अपना काम करने का तरीका बदला, अब हमारे एडवोकेट को भी चेंज करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपकी कोर्ट खुलेगी तो ही आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अर्न करेंगे, नहीं। आप एडवाइजर हो सकते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में, आप उनको लीगल गाइडेंसेस दे सकते हैं, आप लीगल लेक्चर्स ले सकते हैं, आप उसके अलावा बहुत सारी लीगल चीजों में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने वही एक ही उस पे चलना है, लाइन पे चलना है। आपको भी अपनी लाइन एंड लेंथ को चेंज करने की जरूरत है। अब मैगजीन जो प्रिंट में आती थी, या न्यूज़पेपर जो प्रिंट में आते थे, या बुक्स जो प्रिंट में आती थी, वो चेंज हो रही है। पेमेंट गेटवे बना करके लोग इसका ई वर्जन तैयार कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे इवन गाँव में जब हम देखते हैं, आज वो मास्क बना रहे हैं, जो टेलर थे वो आज मास्क बना रहे हैं, पीपी बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं। तो इन चीजों की जो मैन्युफैक्चरर्स की है, उनकी भी डिमांड इसके अंदर काफी अच्छी होने वाली है। और देखिए, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। और एक हरियाणवी में कहावत है कि भाई ये तो यूं चलेगी, ये तो ऐसे ही चलेगा। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, यह नाव तो हिलती जाएगी, चाहे तू हंसता जा चाहे तू रोता जा। ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं कि अपना हौसला बुलंद कर लो, फूल मेहनत के हथेली पर उगा कर देखो, जोश इतना भर लो कि मेहनत की इंतहा हो जाए। कामयाबी इस तरीके से मिले कि वो भी एक दास्तान हो जाए। कामयाबी इन हाथों की लकीरों में नहीं है, इन उंगलियों की अंगूठियों में नहीं है, आपके माथे के पसीने में है। और हमारी वाइफ डॉक्टर अनीता भारद्वाज कहती हैं, स्टेटमेंट कहती हैं कि जिसने कहा कल उसके दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। देखिए, बिजनेस चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी। अब छोटा सा मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आपको इन सारी चीजों के ऊपर, ये जो 12 क्वेश्चन हमने तैयार किए, एक बार सेल्फ रिप्लाई करके देखिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ईमानदारी से एक प्लेन सीट के ऊपर आप इन 12 चीजों के आंसर्स लिखिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे एलुमनाई हो, चाहे कहीं भी किसी भी एरिया में आप काम करते हो, आप एक बार इनको आप अप्लाई करके देखिए और आप डिफरेंस देखिए। ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, IIM में या हार्वर्ड के अंदर जब एक कोई लास्ट क्लास होती है, उसके अंदर ये 12 चीजों के ऊपर होमवर्क होता है, और एक एक चीज को इतने डिटेल में डिस्कशन होता है कि वहीं पर एनालिसिस कर लेते हैं। ये मेरा डिटेल्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। आप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आप मुझे मेल कर दीजिए। ये वेबसाइट्स हैं हमारी, और इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको जॉब चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, आप टेंशन मत करिए। अगर आप ITS के स्टूडेंट हैं तो आप हमको बुलाइए। हम ऐसे में भी, हमको हेल्थ केयर के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो उन्हें सप्लाई करते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, उसके अंदर मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, BBA के, BCA के, पैरामेडिकल्स के,
इंजीनियर्स के, और हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के एम्प्लॉय काम करते हैं। तो चाहे आप कुछ भी हो, अगर आपकी कभी जरूरत पड़े आपको जॉब से रिलेटेड, तो आप हमको याद करिएगा, बस एक बार सीवी भेज दीजिएगा, हमारी टीम अपने आप आपको अप्रोच कर लेगी। अर्पित चड्ढा साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से बात करने का। थोड़ा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो इसलिए मैं जल्दी आप लोगों से विदा चाहूँगा। और जी मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सहज तरीके से सारे चीज़ों को बताई सर, एंड आई एम श्योर सर हमारे बच्चे ये जो आपने 12 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब इंक्लूडिंग मी, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल शुड डू इट एंड वी मस्ट डू इट। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था, थैंक यू सो मच सर। आई विल नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर टू गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you so much sir for a very insightful address, and I'm sure सभी लोग जिन्होंने अटेंड किया है सेशन उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा आपसे ये सारी प्रेजेंटेशन आपकी देख के। और जैसे कि सर ने बताया, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चंस मेल से सर से पूछे जा सकते हैं। दैट्स अ रियली ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू once again sir for sparing out time and addressing each one of us. Thank you so much sir.